We were doing classification of money. Money is divided into three parts on the basis of nature of money, legality of money, and money material. We have done actual money, money of account. Now we are moving on. Outside and inside money. On the basis of origin of money, Goulet and Shaw have classified into two categories. So outside and inside money are classified into two categories. Outside money is that monetary asset which has its own origin in the act of governmental purchase of goods and services or transfer payment. So outside money is done between the government and only purchase and services of the money is done. This asset constitutes the claim of private sector against public sector. So this is for only and only government and public sector. When there is a change in revenue, expenditure and transfer payment of government, there is corresponding change in the stock of the outside money. So it is all in all dependent upon the expenditure level, that what kind of expenditure level we are having. So if the expenditure level is going down, the stock market will also fall, and if it is on the boom side, and then the stock market will also rise. So outside money बेसिकली किस चीज़ में डील करता है? गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट. सो किस चीज़ में डीलिंग है आउटसाइड मनी की? गवर्नमेंट परचेज में. ठीक है. एंड दिस एसेट कॉन्स्टिट्यूट्स द क्लेम ऑफ प्राइवेट सेक्टर अगेंस्ट पब्लिक सेक्टर. सो कौन से सेक्टर में ये डील कर रहा है? ये क्लेम करता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में डील करता है. पब्लिक सेक्टर के लिए आउटसाइड मनी नहीं है. अगर किसी भी एक्सपेंडिचर में चेंज आता है तो स्टॉक मार्केट में भी आएगा. अगर एक्सपेंडिचर रेस करता है तो स्टॉक भी रेस करेगा. अगर एक्सपेंडिचर फॉल करता है तो स्टॉक मार्केट भी फॉल कर जाएगी. इनसाइड मनी. इनसाइड मनी इज़ दैट मॉनेटरी एसेट विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन द एक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परचेज ऑफ सिक्योरिटी. तो इनसाइड मनी कहाँ डील कर रहा है हमारा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में. This type of money originates as a result of purchase of security by financial institutions. तो आउटसाइड मनी तो हमें पता चल गया ये गवर्नमेंट के लिए है, प्राइवेट सेक्टर के लिए है, एंड ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है. बट जो इनसाइड मनी है ये किस चीज़ के लिए है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है. सेकेंड, ये डील करता है सिक्योरिटीज़ में. सिक्योरिटीज़ में क्या? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़. It is created by the banks. So this is for the banks. Thus the money whose supply comes into being as a result of expenditure by private sector is called inside money. So जहाँ अब हम private sector की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम क्या बात करेंगे? inside money की. Its stock increases when financial institution like commercial banks buy the securities. तो अब स्टॉक कब इंक्रीज़ करता है? जब हमारी इनसाइड मनी रेस करती है. अब इनसाइड मनी कैसे रेस करेगी? जब हमारे कमर्शियल बैंक्स परचेज़ करेंगे सिक्योरिटीज़ को. ठीक है. सो आउटसाइड मनी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एक्सपेंडिचर. इनसाइड मनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिक्योरिटी, प्राइवेट सेक्टर, इनसाइड मनी. सो हाउ वी कैन राइज द expenditure stock market? By purchasing the securities by commercial banks. Third, classification on the basis of money material. The classification of the money is on the basis of the material that is made of. On the basis of nature of money material, money is divided into two categories, that is metallic money and paper money. Students, don't go on the name paper money, that doesn't mean the notes. Metallic money. Metallic money refers to that money which is made of some metal like gold, silver, etc. ये हमने पहले भी किया है. metallic money मतलब कि ऐसे metals जिनकी ज़्यादा वैल्यू हो. ठीक है. अब ज़्यादा वैल्यू वाले कौन से metals हैं? दो ही हैं अभी तो फ़िलहाल के लिए. थ्री. गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. ठीक है. और भी हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फुल बॉडीड मनी. ठीक है. अब मेटालिक मनी को और क्या बोलते हैं? फुल बॉडीड मनी भी कहते हैं. इन इंडिया 1 रुपी कॉइन एंड अदर सब्सिडरी कॉइन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मनी. अब देखो, अभी तो हमने 3 की बात की थी, गोल्ड, सिल्वर एंड
प्लैटिनम। अब इंडिया में जो कॉइन्स है या कहीं पर भी बाहर जो कॉइन्स के लिए मेटल जो यूज़ होता है उसको भी हम मेटालिक मनी ही कहेंगे। इनिशियली पीसेज ऑफ बार्स ऑफ प्रेशियस मेटल्स वो यूज्ड एज मनी, बट हम पैसों के लिए कौन से मेटल को यूज़ करते हैं जो प्रेशियस है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। These were to be weighted and acid and there was no guarantee with regard of the finance। तो अब हम इन पे हमेशा के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं सेट करते, हर एक टाइम पर ये सबकी प्राइस वेरी करती है, डिपेंड करता है कि किस तरह से हमारा स्टॉक मार्केट चल रहा है। But in these were to be in order to avoid these inconveniences, when a metallic piece of given weight and value were embossed when the coins came into the circulation। तो हम मेटालिक मनी कैसे डील करते हैं या मेटालिक मनी कैसे ख़रीदते हैं, उसके वेट पर, ठीक है। एंड हमेशा उनके वेट पर एक नई प्राइस आती है एंड डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर मेटल की अवेलेबिलिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतना उनका प्राइस कम होगा, बट एक पर्टिकुलर प्राइस रहती ही है कि इससे कम नहीं आने वाला है। गोल्ड की बात करते हैं, फ्रॉम अ लास्ट डिकेड आई डोंट थिंक कि गोल्ड 26 से नीचे गया होगा, तो 26,000, ठीक है। 26,000 क्या हो गया, एक उसका एक बेंच मार्क हो गया गोल्ड का कि उससे नीचे ये नहीं गया और जाएगा भी नहीं, ठीक है। Okay, generally the art of coining was involved and attractive. Uniform and solid coins were put to be manufactured. Metallic money are of 3 types. So coins में भी डील करते हैं, ये तो हमें पता ही है। सिल्वर कॉइन्स आते हैं, गोल्ड कॉइन आते हैं, नॉर्मल कॉइन्स भी आते हैं। जो नॉर्मल कॉइन्स हम हमारी करेंसी है, उनकी वैल्यू उनकी मेटल के यूपर है कि कितनी वैल्यू वो कैरी कर रहे हैं। सिल्वर कॉइन, इंडिया में सिल्वर कॉइन्स बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। वी यूजुअली गिफ्ट देम एज अ पार्ट ऑफ शगुन, ठीक है, सो एज गोल्ड एज वेल। स्टैंडर्ड और बॉडी और फुल बॉडीड कॉइन्स, सो फुल बॉडीड हमने किसको कहा था, मेटालिक मनी को ही। स्टैंडर्ड कॉइन इज़ दैट कॉइन हुज वैल्यू एज कमोडिटी इज़ इक्वल टू इट्स वैल्यू एज मनी। सो स्टैंडर्ड कॉइन होगी कि जो हमारे 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी का जो कॉइन होता है वो क्या है, स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन है। हम इसे ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी है। अगर 1 रुपये का सिक्का है तो उसकी वैल्यू 1 रुपये ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और उसका जो वैल्यू है पर्टिकुलरली लाइफ लॉन्ग वही रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं होगा। These coins are made either of gold or silver. They are define weight and fineness. Their face value are equal to their instinctive value. Standard coins have following characters. So अब गोल्ड सिल्वर के भी वही रहने वाले हैं, बट फ़र्क क्या होता है, जो इंडियन करेंसी का कॉइन होता है उसकी जो वैल्यू है वही पर्टिकुलर रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली। बट जो गोल्ड और सिल्वर की है वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, पर जो उसका वेट है वो डेफिनेट होगा। गोल्ड और सिल्वर को हम जज करते हैं उनकी करंट मार्केट वैल्यू पर, ठीक है। दे आर ऑफ डेफिनेट वेट एंड फाइननेस। तो तीनों कॉइन्स हमारे, जो हमारी करेंसी है, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा के जौन से भी कॉइन्स हैं, वो एक डेफिनेट वेट के होते हैं और उनकी अपनी एक फाइननेस होती है, ठीक है। अब उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इट इज़ द प्रिंसिपल कॉइन ऑफ द कंट्री, ठीक है। मेन कॉइन वही होगा जो हमारी कंट्री का है। जैसे कि हमारी जो नॉर्मल कॉइन्स की जो मेटल है, जैसे कि जो इंडियन कॉइन की अगर बात करें तो जो इंडियन कॉइन पे जो मेटल यूज़ हो रहा है दैट इज़ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। अब इसमें होता क्या है, क्रोनियम 17% एंड आयरन 83%। तो इन कॉइन्स की जो वैल्यू है वो वही रहने वाली है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। सो बेसिक पर्पस इन कॉइन्स का होता है दैट दे आर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। हम अपनी ज़रूरत का सामान इनसे परचेज़ कर सकते हैं, एंड ये बेसिकली हमारी सेल एंड परचेज़ दोनों में ही रहते हैं। ऑल्सो एक्ट एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड मोर ओवर दे आर सब्सटीट्यूटिंग अ पार्ट इन आर अकाउंट्स एज वेल। अकाउंट्स, इट कैन बैंक अकाउंट, इट कैन बी योर पॉकेट, सो दे आर गिविंग अ वैल्यू टू यू।
इट इज़ मेड ऑफ इधर गोल्ड और सिल्वर. सो गोल्ड और सिल्वर के हो सकते हैं. इट कंटेन्स गोल्ड और सिल्वर और सेम वैल्यू एज इंडिकेटेड एज इट्स ऑन द फेस वैल्यू. इफ़ पीपल सो डिज़ायर दे कैन गेट इट मेटल्ड एंड सेल इट एज अ गोल्ड और सिल्वर इट्स पेलन. ठीक है. सो डिपेंड करता है लोगों ने इन्हें कैसे रखना है एंड कैसे सेल करना है. उनकी मर्ज़ी है. उन्होंने चाहे तो जो इनकी फेस वैल्यू है उस पर करना है, चाहो इनको ऑर्नामेंट में बनाकर करना है. इट इज़ ऑल एंड ऑल देयर वैल्यू. all and all their wish. There is a free coinage of standard money. People can take gold or silver to the mint and get the same converted into coin free of cost. ठीक है. अब ये लोगों की मर्ज़ी है कि उन्होंने उसे कैसे रखना है. गोल्ड और सिल्वर के लिए ये कॉइनेज भी करवा सकते हैं. कॉइनेज माने कि गोल्ड और सिल्वर को एक्सचेंज करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री की करंट करेंसी में. Consequently, the equilibrium between the supply of demand of money is maintained automatically and there is no need of any government management of the currency. तो इसके लिए हमें कहीं से भी कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है एंड जो उस पर्टिकुलर मेटल का प्राइस होता है वो हमें मिल जाता है. Face value and instinctive value of standard money are always equal. In India, prior to 1893, Indian rupee coin was a standardized coin. So, Indian rupee standardized coin कब से हुआ है? 1893. Students, this is important. You need to remember. 1893 से Indian coin standardized coin में आया है. It is unlimited legal tender since the principal money of the country, so it remains the legal tender to an unlimited account. तो legal tender इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारी कंट्री में यही करेंसी चलती है जो कॉइन्स में डील करती है. एंड हमारा जो कॉइन है वो कौन सा है? दैट इज़ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील. नाउ वी मूविंग ऑन टोकन कॉइन्स. तो ये तो नेम से ही हमें पता चल रहा है जिसको हम एज अ टोकन यूज़ करते हैं. नॉर्मली हमें वो लाइक जब हम सिख श्राइन्स में जाते हैं या हम टेम्पल्स में जाते हैं, जब हम अपनी कोई भी चीज़ डिपॉजिट करवाते हैं, मॉल्स में भी आजकल होता है कि कोई भी चीज़ हम अपनी डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें वो एक कॉइन सा दे देते हैं, टोकन सा दे देते हैं जिस पे एक नंबर या कोई अल्फ़ाबेट प्रिंट हुआ होता है. तो दैट थिंग इज़ कॉल्ड टोकन कॉइन. Token coins are those coins whose value as commodity is less than their value as a money. मतलब कि ऐसे coins जिनकी value as a coin कम होती है या होती ही नहीं है और हम उन्हें as a money use नहीं कर सकते हैं. It includes all those coins whose face value is more than their instinctive value. They are used for making small payments. सी अभी इंडिया में दिस थिंग इज़ नॉट अवेलेबल. ठीक है ना. हमारी जो एक ही लाइक करेंसी है वही चलती आ रही है. इवन बाहर कंट्रीज़ में भी, अब्रॉड में भी उनका एक पर्टिकुलर सेट किया हुआ एक बेंचमार्क है हर एक कॉइन के लिए, हर एक मेटल के लिए. ठीक है. अब आपकी बुक में लिखा है यू कैन मूव ऑन, बट आई विल नॉट प्रेफर राइटिंग दिस थिंग. दीज कॉइन्स आर मेड ऑफ ब्रेजर मेटल दैट इज़ कॉपर, निकल एक्सेट्रा. ठीक है. सो अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम पेमेंट्स की बात करते हैं तो लाइक कि ये डिकेड्स एंड डिकेड्स से पहले की बात है. लाइक इट इज़ लाइक 40-50 ईयर्स अगो. और ये इंडिपेंडेंस के टाइम की बात है कि जब कॉपर एंड निकल यूज़ किए जाते थे छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए. दे सर्व्ड एज सब्सिडरी टू स्टैंडर्ड कॉइन्स. तो ये क्या हुए? स्टैंडर्ड कॉइन्स के एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव्स बन जाते थे बट फॉर द स्मॉलर पेमेंट्स. See, it is written here and you have to write it. They are completely distinct from standard coins in respect of the following features. तो ये standard coins से थोड़े different थे. क्या difference था? Their face value is more than instinctive value. उनकी जो face value होती है ज़्यादा होती है. ठीक है. एंड इनको कोई भी हम कॉइनेज नहीं देख सकते हैं. कॉइनेज मीन्स हम इसको मार्केट में ले जाकर हम इनसे कॉइन्स नहीं ला सकते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू जो होती है, जो मेन जैसे कि हमारा पहले हमने किया है स्टैंडर्ड मनी में, वैसी नहीं होती है कि हमें तो स्टैंडर्ड मनी में जो उस पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस है हमें उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो मिलेगा, हमें सब उसका कॉइनेज मिलेगा. बट जो टोकन मनी है इसकी हमें कॉइनेज नहीं मिलेगी. दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर द स्मॉलर पेमेंट्स. It means people are not free to get coin minted.
तो ऑब्वियसली अब इनकी जो फेस वैल्यू है उससे कम है इसकी वैल्यू, तो उसकी डेफिनेट सी बात है, अगर हमें कॉपर का 1 रुपी मिल रहा है तो हमें पता है कि अगर हम इसे मार्केट में लेके जाने वाले हैं, इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू रहने वाली है वो 1 रुपी से भी कम रहने वाली है, तो इसलिए हमें इसके अगेंस्ट में कॉइन्स नहीं मिलने वाले हैं। वैल्यू ऑफ दीज कॉइन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ मेटल दे आर ऑफ मेड ऑफ, ठीक है ना, कोई मर्जी मेटल के ये बने हो तो उस चीज़ का कोई बॉदरेशन ही नहीं है। रादर द सेम इज़ डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट डिक्री। तो गवर्नमेंट ने भी यही सेम नोटिसेस दिए हैं, यही बताया है कि टोकन कॉइन्स को हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। दीज कॉइन्स डू नॉट कंस्टिट्यूट द प्रिंसिपल मनी ऑफ द कंट्री, दे आर यूज्ड एज सब्सिडरी टू द स्टैंडर्ड मनी। तो ये जो हमारी टोकन मनी है इसे हम मेन कंट्री की करेंसी में नहीं इंक्लूड करते हैं, ये सिर्फ एक सब्सिडरी मनी है, एक ऑल्टरनेटिव मनी है, छोटा ऑल्टरनेटिव मनी है स्टैंडर्ड मनी का। दीज कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर्स ओनली, तो इनका एक लिमिट है, इनका जो फंक्शन है एक लिमिटेड है, हम इसे एग्जैजरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉइन एंड द टोकन कॉइन। नाउ वी आर मूविंग ऑन, इज़ इंडियन रुपी अ स्टैंडर्ड कॉइन और अ टोकन कॉइन। अब ये देखते हैं जो हमारा इंडियन रुपी है, क्योंकि हम उसको स्टैंडर्ड कॉइन में रिलेट कर रहे हैं, लेट्स सी वेदर इट इज़ स्टैंडर्ड कॉइन और अ टोकन कॉइन। It is difficult to say whether Indian rupee it is difficult to say whether Indian rupee that is in circulation of these days is standard or token coins। अच्छा, अब इस चीज़ का आंसर ये है, देखो स्टैंडर्ड कॉइन की मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉइन्स में ही कंसिडर करने के लिए कहा है, बट देयर इज़ अ डाइसी थिंग इन दिस, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कॉइन्स होते हैं उनकी एक फेस वैल्यू रहती है, ठीक है। अब फेस वैल्यू तो रुपी की भी रहती है, बट फेस वैल्यू मीन्स 1 रुपी 2 रुपी नहीं, फेस वैल्यू मीन्स लाइक इन थाउजेंड्स हंड्रेड्स, ठीक है। इट हैज़ द एट्रीब्यूट ऑफ बोथ, तो इसमें दोनों है, ये स्टैंडर्ड कॉइन भी है एंड ये टोकन कॉइन भी है। टोकन कॉइन इसलिए क्योंकि अगर हम 1 रुपी कॉइन को मार्केट में लेके जाएंगे तो हमें इसके अगेंस्ट में ज़्यादा पैसे नहीं मिलने वाले, मे बी उससे कम ही मिले। प्रायर 1893 इंडियन कॉइन वॉज स्टैंडर्डाइज कॉइन, इट इज़ मेड ऑफ सिल्वर। उस टाइम पर हम इसको स्टैंडर्ड मनी मानते थे क्योंकि ये सिल्वर का बनता था। जब राजे महाराजे मोनार्क्स का टाइम था तब हमने देखा है मूवीज़ में एंड कार्टून्स में भी अभी दिखाया जाता है, अशरफियाँ दी जाती थी, मतलब गोल्ड कॉइन्स दिए जाते थे, ठीक है। वो उस टाइम में हम कॉइन को एज अ स्टैंडर्डाइज कॉइन ही मानते थे, ठीक है। 1893 में भी जो हमारा कॉइन था वो सिल्वर था, तब भी वो स्टैंडर्डाइज कॉइन ही था, बट जो अभी करंट चल रहा है वो स्टैंडर्डाइज एंड टोकन कॉइन दोनों है। अच्छा, एक और बात हम कभी कभी इंडियन करेंसी को स्टैंडर्डाइज भी मान लेते हैं। कब मानते हैं? जब उस कॉइन की वैल्यू हो, लाइक अगर कोई पर्सन 100 ईयर्स या 50 ईयर्स पुराना कोई कॉइन लेकर आता है अभी करंट वाले कॉइन जैसा ही, तब उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा रहती है, ठीक है। अभी जो चल रहा है उसकी कोई फेस वैल्यू नहीं है, जो उसका अमाउंट है वो वही रहने वाला है। बट अगर आप इंडिपेंडेंस के टाइम के आसपास का या उससे पहले का अगर कोई कॉइन लेकर आते हैं या मार्केट में आपको नॉट यू बट हाँ कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर लेके जाता है तब उसको उसकी अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस मिलेगी और डेफिनेटली जो उसकी फेस वैल्यू होगी उससे ज़्यादा ही मिलेगी। इसलिए बोल रहे हैं कि इंडियन कॉइन ना तो स्टैंडर्डाइज है और ना ही टोकन है, ये दोनों ही है। सो उसको कॉइनेज भी मिलेगा उसका, ठीक है। बट द पोजीशन ऑफ द रुपी इज़ नॉट सो लो लाइक कॉइन, लाइक टोकन कॉइन। इट इज़ इंस्ट्रिक्टिव वैल्यू इज़ लेस देन द फेस वैल्यू। इट इज़ नॉट मेड ऑफ सिल्वर, क्योंकि अभी करंट की बात करें ये सिल्वर का नहीं बना होता, तभी इसको कॉइनेज नहीं मिलने वाली। नन द लेस इट हैज़ मेड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्टैंडर्डाइज कॉइन, बट उसका एक वैल्यू है, एक इम्पॉर्टेंस है, क्या कि वो करेंसी है कंट्री की, स्टैंडर्डाइज है। रुपी इज़ द प्रिंसिपल मनी ऑफ द कंट्री, मेन मनी ही रुपी है कंट्री का, तो हम उसे टोकन मनी तो कंसिडर कर ही नहीं सकते। रुपी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ द अकाउंट, तो अब कैसे किसी टोकन को हम ये वैल्यू दे सकते हैं? तो कहीं ना कहीं जो इंडियन रुपी है वो स्टैंडर्डाइज कॉइन ही है, बट डिपेंड करता है कि उसकी करंट वैल्यू कितनी है। रुपी इज़ अनलिमिटेड लीगल टेंडर, सो अब जो रुपी है उसका कोई लिमिट तो नहीं है, सो इट कैन बी देयरफॉर सेड टू बी दैट इंडियन रुपी इज़ अ स्टैंडर्ड कॉइन। सो ये कहा जा सकता है कि जो इंडियन रुपी है वो क्या है, स्टैंडर्ड कॉइन है। कॉइन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज
ऑफ द वर्ल्ड आर इन द सेम सिचुएशन टुडे। तो जितने भी करंट कॉइन्स आजकल चल रहे हैं किसी भी कंट्री में, उनकी सिचुएशन सेम ही है, क्योंकि टोकन मनी में हम उन्हें टोकन कॉइन में कैटेगराइज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि टोकन कॉइन की जो वैल्यू है वो डे बाय डे कम होती है, ठीक है। एंड नॉर्मली उनकी जो फेस वैल्यू से, उसकी जो फेस वैल्यू मतलब अगर हम किसी कॉपर या निकल के कॉइन पर अगर उसको 1 रुपी हम प्रिंट कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1 रुपी नहीं होने वाली, डेफिनेटली उससे कम ही होने वाली है। बट अगर इंडियन करेंसी का कोई भी कॉइन आपके पास 5, 10 का है तो वही रहने वाला है। एंड मोर ओवर आज से 20-25 साल के बाद में वो करंट कॉइन उसकी वैल्यू 10 या 5 से ज़्यादा ही हो जाएगी। So students, I hope you've understood today's lecture. If you have any sort of problem, please do message me. Thank you so much.